Hello students, welcome to your English class. Today we are going to study English grammar, grammar with conversation, chapter 1, the sentence. What is a sentence? Definition of sentence is, a sentence is a group of words that makes a complete sense. It has subject and predicate of its own. It also contains a verb. Sentence क्या है? वाक्य, जिसका मतलब है वाक्य या सेंटेंस शब्दों का वो समूह है जिसका कि कोई अर्थ होता है. इसके खुद के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं और इसमें वर्ब यानी क्रिया भी होती है. फॉर एग्जाम्पल, आर यू फीलिंग वेल? क्वेश्चन मार्क. Harish gifted me a pen on my birthday. Full stop. The family has gone to the park in the evening. Full stop. A stitch in time saves 9. Note: a sentence must begin with a capital letter. हमेशा सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होगी. A sentence ends with a full stop, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. हमेशा इसका एंड कैसे होगा? लास्ट में सेंटेंस के एंड में या तो फुल स्टॉप लगेगा या क्वेश्चन मार्क लगेगा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा. अ सेंटेंस हैज वर्ड्स प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर. सेंटेंस में वर्ड्स अपने प्रॉपर ऑर्डर में होंगे. अ सेंटेंस कंटेन्स एन एक्शन वर्ड और वर्ब. सेंटेंस में या तो एक्शन वर्ड होंगे या फिर वर्ब होगा. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. Declarative or assertive, second one is imperative, third one is interrogative and fourth one is exclamatory. Declarative or assertive क्या है? An assertive or declarative sentence is a sentence that states a fact. It states, asserts or declares something. It ends with a full stop. डिक्लेरेटिव में ये या तो असर्टिव में या तो ये कोई फैक्ट बताएंगे या कुछ ऐसी बात जो डिक्लेयर जिससे हमको महसूस होता है कि कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, शिखा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. इंडिया बिकम अ फ्री कंट्री इन 1947. एंड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस आल्सो ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव or a positive, or second one is negative. As the name suggests, affirmative or positive contains positive sentences or positive response, and negative sentence contains it conveys a negative response or meaning. Affirmative positive sentence, it conveys a positive response of or meaning. For example, Premchand was a famous Indian author. Second one is, the children are playing in the park. B, negative sentence, it conveys a negative response or meaning. For example, the sun does not set in the east. I do not like to play badminton. Does not, do not ends with a full stop. ये भी full stop से ends है, ये भी full stop से ends है, पर ये positive है और ये डज नॉट या डू नॉट लगने से ये सेंटेंस नेगेटिव होगा. सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ कमांड और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस. एन इंपरेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप. इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस वो है जिसमें कि कोई एडवाइस दी जा रही है, कोई कमांड है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, उसको जिसको देख पढ़ के हमें ऐसा महसूस हो वो कहलाएंगे imperative sentence. For example, learn something from Vicky. ये एडवाइस दे रहा है कोई कि learn something from Vicky. Shut the door. It is order. ये ऑर्डर मिल रहा है या कमांड मिल रहा है? Shut the door. दरवाजा बंद करो. Please lend me your book. ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज lend me your book. मुझे आपकी बुक दे दो. नंबर 3rd is interrogative sentence. A sentence which ends with a question mark is called an interrogative sentence. An interrogative sentence ends with a question mark. An interrogative sentence begins with is, am, are, was, were, will, has, have, had, do, did, can, may, etc. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या महत्व है? ये इसमें हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य होंगे. ये क्वेश्चन पूछेगा. ये स्टार्ट कैसे होगा? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, हैज, हैड,
आदि शब्दों से स्टार्ट होगा, डू, डिड, कैन एक्सेट्रा वगैरह से, और एंड होगा क्वेश्चन मार्क से. फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम विथ यू, वॉट आर यू डूइंग, कैन शी सिंग, क्वेश्चन मार्क. Last one is exclamatory sentence. And sentence which expresses some strong or sudden feeling is called an exclamatory sentence. An exclamatory sentence ends with an exclamation mark. ये exclamation sentence इसमें कोई खुशी, कोई आश्चर्य और कोई दुख जिसमें मैं उस वाक्य में हमको फील होगा कि ओ वाह गुड, ये शब्द क्या होते हैं, एक्सक्लेमेशन. उसके पीछे मार्क लगेगा, एंड होगा एक्सक्लेमेशन मार्क से, या इसको कहते हैं विस्मय बोधक चिन्ह, उससे इसकी एंड होगी. फॉर एग्जाम्पल, ओ नो आई लॉस्ट माई वॉच, मे गॉड हेल्प यू, वाव व्हाट अ मार्वलस साइट. सम अदर एग्जाम्पल्स आर, हाउ ब्यूटिफुल दिस क्लॉक इज, व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, हाउ हॉट इट इज टुडे, what a fantastic story book Alice in Wonderland is. Okay, now we will do the exercise on page number 10. A. Rearrange the jumbled words given below to form correct sentence. Use appropriate punctuation marks. इसको आपको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, और पंक्चुएशन मार्क भी जहां लगाने हैं वो आपको लगाने हैं. तो हमने क्या सीखा था कि सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर होगा. तो ये फर्स्ट लाइन इज, फर्स्ट ग्रो टू इन इंडिया दे वर कॉटन द. तो सेंटेंस प्रॉपर आपका होगा, दे वर फर्स्ट टू ग्रो कॉटन इन इंडिया. फर्स्ट लेटर दे, टी कैपिटल होगा, दे आर फर्स्ट टू ग्रो कॉटन इन इंडिया, और इंडिया का आई कैपिटल होगा. अ ब्यूटीफुल व्हाट रेनबो, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो, एंड किससे होगा, एक्सक्लेमेशन से. फर्स्ट वाला एंड होगा फुल स्टॉप से, सेकेंड वाला होगा एक्सक्लेमेशन मार्क से, व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो. देन आर लेट बाय यू, why are you late, ends with question mark. Y का W कैपिटल और end with question mark. Fighting stop, stop का S कैपिटल, stop fighting full stop. Go let please me, please let me go, please का P कैपिटल, let me go में ends with full stop. ये आपका assertive और declarative sentence है. ये अफर्मेटिव, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी हैं. यू हैव टू डू इट इन योर कॉपी. वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, गुड बाय.